हाँ जी सर। Today we will start with the proportion. Proportion. Proportion ਨੂੰ solve ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦਾ symbol ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਹ denote ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 4 dots ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ meaning ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ equal to ਕਿੰਨੀਆਂ values ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ solve ਕਰਨ ਲਈ 4 values ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ratio b proportional to c ratio d given ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ a upon b equal to c upon d. It means cross multiply AD equal to BC. AD equal to BC. Is it clear? Clear अभी? Yes sir. इस तो बाद है इसदियां types. First find out करना आ सकता है. First find fourth proportional to seven, 13 and 35. बेटा किन्नियां वैल्यूज दी लोड हुंदी है 4 वैल्यूज दी एक वैल्यू घट है let fourth proportional equal to की मन्नी अभी fourth proportional equal to x पहले 3 तो एज इट इज लिख लेने उवें 7 रेशियो 13 proportional to 35 ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ 4 ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਬੋਲੋ Yes sir. ਇਹਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 7 upon 13 35 upon x now cross multiply 7x equal to 13 into 35 x ਕੱਢਣਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ 5.65 तो फोर्थ प्रपोर्शन आ गया अपने को 65 इज इट क्लियर क्लियर है बेटा हाँ जी सर। लिख लो देखो की सी इस च ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਡੋਟਸ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ there is a need of four values for the proportion and it means this is equal to if we have given a ratio b proportional to c ratio d then it means a upon b is equal to c upon d cross multiply ad equal to bc types first is find the fourth proportional to 7 13 and 35 three values are given but there is a need of four values fourth proportion suppose कितना x है 10 as it is लिख लिया चौथे पे x लिखता then simply solve the expression is it clear clear है बेटा चलिए कि next is second type का question किया जा सकता है find the third proportional to 9 and 15 9 and 15
बिल्कुल सेम वे दे नाल लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल टू एक्स। बेटा किन्ने दी नीड है प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने ਲਈ? 4 जी सर। 4 ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਿਵਨ ਹੈ? 2 2 ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 3। ਚੌਥੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੇ ਕੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ थर्ड ਕਰਨਾ ਹੈ। सेकंड दोबारा लिख लो। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। Is it clear? 9 upon 15, 15 upon x. Then cross multiply. This is 9x is equal to 15 into 15. 15 into 15 upon 9. इसमें cancel out करो, you will get the answer. 3 3s are 9, 3 5s are 15, and answer is 25. So this is the way to find out the third proportional. Third type of question is find the mean proportional to फाइव एंड 80। देखो इस च भी दो ही गिवन है, चाहिए 4 है ਆਪਾਂ ਨੂੰ। let mean proportional equal to x, mean proportional equal to x। बेटा मीन वर्ड है ना, मीन मीन ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਮੱਧ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ x ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ, ਮਿਡਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ x ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੋਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ यस ਕਲੀਅਰ? सर। 5 upon x and x upon 80, same cross multiply x 20 आ गया is कितना आ equal गया? to 400 x is 400 equal to gives 20 20 square, yes sir square cancel with square, this is 20। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਟਾਈਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ if x square 4 and 9 are in and x square 4 and 9 are in continued proportion, find x। ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨੀਚੇ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਤੇ, ਮੀਨਸ x square upon 4 ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨੀਚੇ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਤੇ 4 upon 9। is it clear? this is called continued proportion। x square upon 4 again 4 upon 9। ਜੇ ਅਗਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 9 upon ਲਿਖਦੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਜੇ ਚੌਥੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ। देखो इस की कुछ बनूंगा भी, दिस इज 9 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4 कितना आ गया 16, x square is 16 upon 9।
4/3 स्क्वायर, स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, x इक्वल टू 4/3। दिस इज आंसर। इज इट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। चलिए कि ਇਹ क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ। ਕੁਝ ट्रिक्स पढ़ते हैं बेटा, ट्रिक्स। ट्रिक्स देखो की है, जे कोई रुपीज आ रहा है अपने को, ਆਪਾਂ डिवाइड करने हैं। ट्रिक 1 है, ਆਪਾਂ डिवाइड करने हैं बिटवीन ए एंड बी। डिवाइड बिटवीन ए एंड बी, दो व्यक्ति है उन्होंने दे विच, ते किहड़ी रेशो च डिवाइड करने हैं भी वो, यू हैव टू डिवाइड इट इन रेशो x रेशो y। देन बेटा क्वेश्चन की पूछे जा सकते हैं, पहला पूछा जा सकता है कि ए का शेयर कितना होगा, ए शेयर। फिर पूछा जा सकता है बी का शेयर कितना होगा, बी शेयर। तीजा क्वेश्चन इस पूछा जा सकता है कि इन्होंने दोनों के शेयर च डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस इन देयर शेयर्स। बेटा पता लग गया की क्वेश्चन है? हाँ जी, तीन टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। कोई जायदाद है रुपीज आर, दो बेटियां च डिवाइड करनी है ए ते बी दे विच, किन्नी रेशो च, एक्स रेशो वाई च। ए नू एक्स हिस्सा मिलना चाहिए, बी नू वाई हिस्सा मिलना चाहिए। ए नू कितना पैसा मिलूगा? तो बेटा कड्डन का मैथड है एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू जिन्ना पैसा आप डिवाइड करना है। तो बी का शेयर की होगा बोलो भी, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू आर, जिन्ना पैसा है। जे ए का शेयर कढ़ना है ए की वैल्यू उत्ते रखनी है, बी का शेयर कढ़ना बी की वैल्यू, बाकी सेम है। जे दोनों के शेयर च डिफरेंस कितना है, क्योंकि एक नू एक्स हिस्सा मिल रहा, एक नू वाई, जे डिफरेंस कढ़ना हो बेटा एक्स माइनस वाई, डायरैक्ट एक्स प्लस वाई इंटू जिन्ना पैसा डिवाइड कर देना। गल समझ आ गई कि नहीं भी? बोलो। यस सर। ट्रिक्स तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते एक और ट्रिक के उत्ते। क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड 84 टॉफीज between two children in the ratio of 5:7। हाँ जी बेटा फर्स्ट चिल्ड्रन नू कितनियां मिलणगियां, फर्स्ट चिल्ड्रन या फर्स्ट चाइल्ड शेयर, बोलो बोलो। ट्रिक लगा के हटे हमने तुहानू। सर 5 अपॉन 5 प्लस 7 इंटू 84 इंटू 84। आंसर बोलो। फर्स्ट चाइल्ड नू कितनियां टॉफीज मिलणगियां भी, 35। 35 सेकंड चाइल्ड का शेयर की होगा,
7 divide 5 plus 7, 7 upon 5 plus 7 into 84 84. कितना 49. समझ आ गया भी। हाँ जी। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। डिफरेंस कढ़ना होवे डिफरेंस वाले च पुट कर देती हूँ, ठीक है। वैसे भी डिफरेंस अड अड कढ़ के तो कढ़ ही सकते हैं ਆਪਾਂ 49 ਤੇ 35 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ट्रिक 2 देखते हैं, ट्रिक 2। if the ratio of AB, ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ A ਰੇਸ਼ੋ B ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ देयर डिफरेंस पता है x, then बेटा क्वेश्चन की पूछा जा सकता है शेयर ऑफ ए की होगा, शेयर ऑफ ए। सेकंड पूछा जा सकता है शेयर ऑफ बी की होगा। थर्ड पूछा जा सकता है सम ऑफ ए एंड बी की होगा। पहला तो टोटल दिता हुंदा सी ना, टोटल पैसा डिवाइड करना हुंदा सीगा, लेकिन हुण वो सम टोटल नहीं दिता होएगा। देखो ए ते बी दो लोग सी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੇ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਸੀ ਵੀ a ਰੇਸ਼ੋ b ਚ, ਸਮਾਲ a ਰੇਸ਼ੋ b ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਉਹ x ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ a ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ। ट्रिक है a इंटू एक्स अपॉन a माइनस बी। बी का शेयर की होगा भी b इंटू एक्स अपॉन a माइनस बी, ते सम की होगा दोनों का a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इंटू एक्स। समझ आ गया? लिखिए क्वेश्चन। डिफरेंस between two numbers is 264 and their ratio is 7:3. Find the number. Find the number. हाँ जी, नंबर फाइंड आउट करना बेटा की होगा, मतलब ए ते बी दा। फर्स्ट नंबर की होगा बोलो, तुसी लिखवाना बेटा। ट्रिक दसी हुई है, डिफरेंस 264 है, एक्स की वैल्यू 264 है, तो 7 अपॉन 7 माइनस 3 इंटू 264। फर्स्ट वाला लगाता भी देखो, समझ आ गया? यस सर। फोर 62। सेकंड नंबर किया होगा बोलो भी, बोलो फटाफट। थ्री अपॉन 4 इंटू 264, 198।
क्वेश्चन हो गया भी, कंप्लीट हो गया, समझ आ गया क्वेश्चन? हाँ जी, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ two numbers is 10:7 and their difference is $105. Sum of these numbers is, हाँ जी बेटा क्वेश्चन आया हुआ है SSC CGL ਦੇ ਵਿੱਚ, CGL ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ क्वेश्चन है। बोलो सम की होगा, ट्रिक दस के हटे होने, जल्दी 10 multiply 105. कितना? 10 + 7, थर्ड ट्रिक देखो, सम -7. नीचे 10 - 7. 10 - 7 into 105. 105. लो मल्टीप्लाई दे दो बेटा 595। ये आया हुआ क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ बेटा, मैं ਵੇਖੋ क्लियर हो गया? चलिए आगे, ट्रिक थर्ड देखांगे। ए ते बी दो लोग है बेटा, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਗਿਵਨ ਹੈ A/B, and share of A is X, A ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, then क्वेश्चन आ सकता है बेटा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ B ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਹੋਗਾ। B ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਗਾ बेटा B/A into X। डिफरेंस बिटवीन शेयर्स, डिफरेंस शेयर च डिफरेंस होगा बेटा वो A-B/A into X। ट्रिक याद रखनी है, तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं नाल। सम ऑफ शेयर ऑफ A and B, A + B/A into X, ठीक है भी? हाँ जी, क्लियर है ना? बोलो। हाँ जी सर। क्वेश्चन है, marks of two candidates P and Q are in the ratio 2:5. If marks of P are 120, marks of Q find out करो की होंगे। हाँ जी बोलो, फॉर्मूला बोलो, ट्रिक बोलो की सीगी। मार्क्स ऑफ Q जल्दी, फर्स्ट वाला ही बन गया भी। B/8. 5/2 into
120 b upon a into x क्यों दे किन्ने मार्क्स होंगे भी क्यों दे 300 मार्क्स होंगे समझ आ गया हाँ जी क्लियर क्वेश्चन Yes, sir. ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਕਸ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਤਾਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੇਮ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ